You are cultivating the children nicely. So please continue with the same spirit by Guru Maharaj blessings. Yes, Prabhu. Okay, Kind Hari bless Bol. us. Hare Krishna. Namaste. Now we will over to our SBS Radha Krishna Prasanna Das. So please take our permission. So thank you. Hare Krishna. I am audible, Prabhu. Very nice, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. For me is Thank you so okay. much. Thank you so much, Prabhuji, for this. I just thank His Grace Raghunandan Prabhuji and Anantrupa Prabhu to providing me this seva, even though I am like no neophyte, but then because it has the seva, so this is how I will try to. So today my shloka is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Shloka number 20. So I welcome all the devotees. First of all, before starting, I just wanted to pray to my home deity, Shri Gopalji, Jagannath Baldev Subhadramai Sudarshan, Narsim Bhagwan, Gaur Sundar Nitai Chandra, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada, and my dearest Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and my Shiksha Guru, His Grace Ramakrishna Prabhuji, Her Grace Satya Yashoda Mata, and my respectful obeisances to the lotus feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis assembled here. So please bless me so that whatever I learned from them, I should be able to convey you. So this is the prayer I do. So please bless me so that I can do justify to this shloka. First, I will chant the shloka, and then one person can unmute and chant behind me the shloka, and then we will do the translation and purport, which is Anuvada, and what I can say, translation is Anuvada, and Tatparya is purport. Yeah, so we'll read. So. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम तत्सत। Krishna. So once again, welcome everyone for today's satsanga. So as I said, my shloka is Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Shloka number 20. So one of you can just unmute and repeat after me. Evam prasanna manaso एवं प्रसन्नमनसो Bhagavat Bhakti Yogataha भगवत् भक्ति योगतः Bhagavat Tattva Vijnanam भगवत् तत्व विज्ञानम् Mukta Sangasya Jayate. मुक्त संगस्य जायते। So I will give it, I will narrate whole shloka, and then I request one Prabhu and one Mata can narrate. Yeah. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. Translation. एवं Just a second, Prabhuji. Translation. Can you Thus please share established. the sloka? Is it possible for you to share? Yes, Prabhuji. Just a second. Prabhu, can you give am I permission to permitted, Prabhu? Yeah. Okay, Prabhu. I send a request, Prabhu. Are you able to see the screen? Yes, Prabhuji. Very nice. Thank you, Prabhu. So let me just okay. So translation. I will recite one more time.
एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. Translation: Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by the contact with the devotional services to the Lord gains positive scientific knowledge of personality of Godhead in the stage of liberation from all the material association. So I required one Mata to say one Prabhu and one Mata to narrate the to recite the shloka. हरे कृष्ण प्रभु. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते. Hare Krishna. Srinivas Prabhu, you can also narrate, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. हरे कृष्ण. One Mata. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. Hare Krishna. Vidya Mata, you can also narrate, Mata. You have raised your hand. हरे कृष्ण. एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते. हरे कृष्ण. Can anyone do the purport in Hindi? अनुवाद नहीं भावार्थ. भावार्थ कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु. प्रणाम. Yes, Mata. प्रणाम माता. अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा. जय श्री प्रभुपाद. इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान मीन्स विज्ञान तत्व प्राप्त होता है. तात्पर्य भगवत की तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा. भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है. अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं. ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट दिए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है. जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है. भगवद गीता 18.55 में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है. ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता. मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और ज्यों ही वह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है. यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो. ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है. अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं. उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है. अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता. भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए. शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है.
भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी पद्मजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में वह ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान मीन्स भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातक शास्त्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भी भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो ही वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगणा रघुनाथान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को फिर से एक बार स्वागत है आज का भागवतम सेशन में। जैसा मैंने बताया कि ये जो श्लोका है इसको ऐसा बताया गया है कि मैं पढ़ के बताता हूँ। आचार्य लोगों ने ऐसा बताया गया है कि बहुत बहुत प्रचलित है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो जस्ट रिकैप करने के लिए जो पिछले इसका बाद वाला एक श्लोका और इसका पहले जो 3 श्लोका है ये बहुत प्रचलित है गौड़ीय मठ में। तो इसको बोलते हैं वी विल जस्ट इसको बोलते हैं कि indeed highly popular, significant and frequently quoted shloka in ISKCON and the Gaudiya Vaishnava tradition. They are oftenly referred referred in the lecture and study materials as the core instruction that one can how advance the spiritual life and attain devotion. तो मैं रघुनाथ परमिशन से ये 5 श्लोक जो है एक बार रिसाइट करना चाहता हूँ। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विदुनोति सुरस्ततां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदारजोस्तमो भावा कामलोभादयशये चेतयेतेर अनाविधिं
स्थितं सत्त्वे प्रसीदते एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यन्ते हृदयग्रन्थि सिद्ध्यन्ते छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षयन्ते च कर्माणि दृष्ट्वा एवामनीश्वरे। तो हम देखेंगे कि श्लोका 17 में सुखदेव गोस्वामी ये बोलते हैं, indeed this is highly popular and foundation verse in the bhakti tradition, often cited to emphasize the power of hearing and chanting the glories of Krishna. Message of personality of Godhead, Shri Krishna, are non-different from him. Whenever, therefore, offenselessly hearing the glorification of God are undertaken, it is to be understood that the Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as Lord personality. उसका आगे वाला श्लोक में 18th में ऐसा एक्सप्लेनेशन किया गया है कि practical method of advancing devotional services bhakti, it's highlighted the importance of regular study and the service to the devotees. Here is the remedy of eliminating all the inauspiciousness things within the heart, which is considered to be obstacle in the path of self realization. श्लोका 19 में ऐसा बताया गया है कि the practical effect of devotion services in purifying the heart of material lust and greed. It describes the transition from the began dominated by the material modes to the peaceful state of goodness and ultimately the pure love for God. The soul activity become adulterated in the contact with the matter, and as such the diseased activity are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness and sleep. तो हम श्लोका 19 तक देख सकते हैं कि हमने ये सब चीज हमने स्टडी की, हमने अलग अलग भक्तों से अति सुंदर तरीके से हमने ये समझा। तो आज का जो श्लोक का जो पहला 2 सेंटेंस है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, एस्टैब्लिश इन द मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस, मतलब शुद्ध सत्व, द मैन हुज माइंड हैज बीन एनलिवन्ड बाय द कॉन्टेक्ट विद द डिवोशनल सर्विसेज ऑफ द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है, जो मन है, पहली बात जो है मन है, वो कभी प्रसन्न होता है जब भी हम डिवोशनल सर्विसेज शुरू करते हैं। भगवत तत्व, भगवत भक्ति योग था, जब भी हम भक्ति करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर के स्तर में आता है, और हमारा जो मन है, क्योंकि मन ही सबका कारण है, तो मन जब भी प्रसन्न रहता है तो हम भगवत भक्ति अच्छी तरह से कर पाते हैं, और भगवत भक्ति करने से मन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्नता, हम प्रसन्नता, सभी लोग प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते अपना अपना ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो स्वयं कृष्ण जो है वो फाउंटेन हेड है, आनंद का फाउंटेन हेड है। जब भी हम उनको कनेक्ट करेंगे तो वो जो आनंद है हम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमको भगवत भक्ति करना चाहिए। ये जो पहला 2 श्लोक हैं उसमें ये बताया गया है, और ब्रह्मा जी भी इसको कंफर्म करते हैं। तभी हम देखेंगे हमारा जो गौड़ीय परंपरा है, हम किसको ज्यादा, मतलब हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भी हम किसी के भक्ति के ऊपर हम रोज उनका नाम भी लेते हैं। उनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो है दिन में 20 से 22 घंटा भगवान का नामस्मरण करते थे। वो नामस्मरण करने की वजह से जो उनका जो क्या बोलते हैं भक्ति है, वो देख के स्वयं कृष्ण, नन अदर देन चैतन्य महाप्रभु, इतने प्रसन्न थे। तो रोज
हर दिन वो जो जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, वहां पे एक उपल भोग लगता है आफ्टरनून में। तो उपल भोग लेके हर दिन हरिदास ठाकुर को वो लेके आके, क्योंकि हरिदास ठाकुर बाय बर्थ मुस्लिम थे, हाँ, यवन थे, तो वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, बट मंदिर के बाहर जो है बैठ के वो सुदर्शन चक्र को देखते देखते वो चैंट करते थे। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जी रोज उनको हर दिन उनको लेके जाके प्रसाद खिलाते थे। तो देखिए कितना भगवत भक्ति करने से स्वयं कृष्ण भी प्रसाद लेके आ सकते हैं हमारे लिए, या। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में ऐसे बताया गया है 3.3.99 में कि जो भक्त है हमेशा शुद्ध सत्व में या सत्व गुण में रहता है, तो उसका चैंटिंग के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर जो है ये श्लोक में ऐसा बताया गया है कि एक बेनाकुल जगह था, तो वहां पे उन्होंने कुटीर बांध के वो प्रचार रोज भक्ति करते थे, वो रोज नामस्मरण करते थे। धीरे धीरे उनका प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तो वो जो एरिया का जो नवाब ने एक बंदे को वहां पे इसको वहां पे नियमित किया गया था। तो उसका नाम था रामचंद्र खान। देखिए नाम है रामचंद्र, बट क्योंकि नवाब के अंडर है इसके उसको खान लगेंगे। तो ये रामचंद्र जी जो है, इनको 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 लगता है कि ये प्रसिद्धि देख के ये हिंदू भी नहीं है, बट ये इसका प्रसिद्धि ज्यादा हो रहा है, तो हमको इसको कैसा ना कैसा ईर्ष्या में थे, मतलब इसको कैसा ना कैसा इसका नाम खराब करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, तो वो जो एरिया में एक सुंदर कन्या थी, उनका नाम था हीराबाई। वो प्रोफेशन से प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्या थी। तो उनको पैसा देके बोलते हीराबाई को, जाके जो है हरिदास ठाकुर का आप भंग करो, हाँ, जो उनका जो प्रसिद्धि है वो भंग करो। वो जैसे ही पैसा मिलता है वो चली जाती है उनके कुटीर में। हरिदास ठाकुर जो है वो हमें एवरी डे में तुलसी प्लांट के सामने बैठ के वो चैंटिंग करते थे। तो जैसे ही वो हीराबाई आते हैं हरिदास ठाकुर के पास, वो बोलते हैं कि मेरे को आपसे संग करना है। वो इतनी सुंदर थी, कोई भी पुरुष जो है वो उन पे मोहित हो सकता था, ऐसी थी वो। बट हरिदास ठाकुर जो है 20 अतिरिक्त अतिरिक्त अपना जो दिनचर्या है वो हमेशा शुद्ध सत्व में रहते थे। तो उन्होंने उससे वो प्रताड़ित नहीं हुए। उन्होंने बोला ठीक है, आपको संग करना है, मैं तैयार हूं, बट आपको मेरा साधना करने तक आपको रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो साधना करते गए, वो बहुत देर बैठ के भगवान का नामस्मरण सुनते सुनते वहां पे सो गए। तो फिर दूसरा दिन फिर से उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि तो पैसा तो लिया है तो करना तो है। तो फिर दूसरा दिन ऐसा 2-3 दिन लगातार हुआ, और चौथे दिन में उनका जो हार्ट है वो कंप्लीटली चेंज ओवर हुआ, टर्न हुआ। भगवत भक्त का संग आने से चेंज हुआ, तो वो भक्त बन गई। तो हम देख सकते हैं कि इतनी भगवत भक्ति करने के बाद, पूरे लाइफ टाइम करने के बाद, जो चैतन्य महाप्रभु है, नन अदर देन कृष्णा है। जब भी हरिदास ठाकुर ये भौतिक दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, तो उनके सामने महाप्रभु थे। और उनका चरण पद्म पकड़ते हुए, उनका मुखारविंद देखते देखते उन्होंने ये देह त्यागा, मतलब यह लोक से आध्यात्मिक लोक, उसमें भी गोलोक वृंदावन में वो चले गए। तो हमने परपोर्ट में देखा, प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक श्लोका का उल्लेख करते हैं, श्लोका नंबर 7.3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयेत, यतात्मा अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। इसका ट्रांसलेशन क्या है? आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग्स मैन वन मे एंडोवर फॉर द परफेक्शन, एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड द परफेक्शन हार्डली वन नोस मी इन ट्रूथ। या तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, ऐसे भगवत भक्ति करने वाले अनेक है, हजारों में है। उसमें हजारों में कोई एक परफेक्शन पा सकता है, ये भगवान खुद बोलते हैं। हजारों हजारों भक्त में एक कोई परफेक्शन पा सकता है। ऐसे परफेक्शन पाए हुए और अधिक संख्या, और हजारों में कोई एक मुझे जान सकता है। भगवान को जानना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है। तो इसके लिए हमको भगवत भक्ति में हमेशा रहना चाहिए। भगवत भक्ति में हम रहेंगे, एक ना एक दिन हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे।
ऐसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो इसका जो दूसरा दो लाइन है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो डिवोशनल सर्विसेज टू द लॉर्ड गेन्स पॉजिटिव साइंटिफिक नॉलेज of the personality of Godhead in the stage of liberation from the all material association। तो material association मतलब क्या है? दूषित है, दूषण होना है। तो हम भगवत भगवत भक्ति करने से हमको भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। किसका ज्ञान है? वो भगवान का भगवत ज्ञान। तो भगवत भगवत ज्ञान प्राप्त होते हम क्या हो जाएंगे? लिबरेशन फ्रॉम ऑल मटेरियल एसोसिएशन, मुक्त संगत से जाते, जितने भी दूषित है ये दुनिया में, उसको हम पार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये दो लाइन का ये बताया गया है। और बाकी जहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है परपोर्ट से, तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट से मैं बताने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है, और जो साइंटिफिक नॉलेज, ये दोनों में मतलब ये दोनों जो है एक के साथ एक चलते हैं। भगवत भगवत जो विज्ञान है, जो स्क्रिप्चर है, वो पढ़ने से हमको भगवान का जो परम सत्य है वो पता चलता है। बट जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझते हैं कि हम बहुत सारे लोग मिलके हम एक अपने सेंटिमेंट के तरफ से हम किसी को एक चुने, वो हो सकता है लीडर, या वो हो सकता है लीडर बन के धीरे धीरे वो महान हो सकता है। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन को महात्मा बोलते हैं, वो महात्मा नहीं है। महात्मा कौन है? जो शास्त्र में जो लिखे गए हैं वो महात्मा है, 12 महात्मा है। हमने पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा और हमने देखा, महाजन, उनको महाजन बोलते हैं। जो लोगों से जो महात्मा, वो सच्ची में महात्मा नहीं। और वो सच्ची में भगवत तत्व विज्ञान नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि कोई अच्छा सा श्वेत वस्त्र या क्या बोलते हैं भगवा वस्त्र जो पहन के, अच्छा सा दाढ़ी बढ़ा के कुछ ना कुछ मिस्टिक पावर दिखाएगा, तो जो जनरल पब्लिक है उसको ही भगवान मानना शुरू करती। और फिर धीरे धीरे वो पॉपुलर होता है, उसके बहुत सारे अनुयायी बढ़ते जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो ये धरातल को छोड़ता है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवत तत्व नहीं। हम देख सकते हैं हमारा जो डिवाइन ग्रेस, इस डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी जो है, उन्होंने ये धरातल छोड़ के 50 साल हो गया, 50 ईयर्स, मतलब हम देख सकते 5 डेकेड इज टू मच। बहुत सारे नया जनरेशन आए, बट फिर भी प्रभुपाद की जो प्रसिद्धि है वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रभुपाद जब भी थे ये धरातल में, उन्होंने 108 मंदिर बनाए। आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास हजारों मंदिर है। बोलते थे कि जो ब्रिटिश राज है उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, कहाँ ना कहाँ तो सनराइज होता था। तो हम गर्व से आज बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो स्पिरिचुअल किंगडम है, कहाँ ना कहाँ तो मंगलारती हो ही रहा है। क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा बढ़ रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो उनके गुरु के आज्ञा से उन्होंने शास्त्र को पढ़ा, उन्होंने जितने भी ये फॉलो करना है वृंदावन में बैठ के अति उत्तम तरीके से उन्होंने फॉलो किया। और उन्होंने जो 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 भाषा हमको आते हैं, आज भगवत गीता इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम पाश्चात्य देश का लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। यहाँ तो प्रभुपाद जी ने हमको जो लैंग्वेज आता है उसमें हमको परोस के दिया, ये भगवत तत्व इजी इजी बना के दिया। और वो बोलते हैं कि मेरा मेरा जो फॉर्म है, मैं बुक में माध्यम से मैं रहूंगा। या इसके लिए वो बहुत पॉपुलर है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत विज्ञान कितना अंडरस्टैंड है। और जो भी इसको समझता है वो क्या होगा? मुक्त संग से वो लिबरेशन होगा। किससे? कंटामिनेशन ऑफ, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते पर्पोर्ट में, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये 3 मोड क्या है, संक्षिप्त में समझेंगे। तो 3 मोड में जो जो पहला 2 मोड है, जो तमोगुण और रजोगुण है, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस को बताया गया है कि ये दूषित है, ये पूरा 100% दूषित है, उसमें कोई कोई चीज अच्छा नहीं है। या क्योंकि इससे ये पाने से कभी भी इंसान भगवान को जान ही नहीं पाएगा, इसको फॉलो करने से। या और उससे ऊपर जो है वो है तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण, सॉरी, रजोगुण।
तमोगुण से ऊपर है वो रजोगुण है। रजोगुण में बहुत सारा एक्टिविटी करता है, बहुत पैशन से करता है। तो हम देख सकते हैं हमारा इंडिया में ऐसे ऐसे फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान है। कहाँ है, हम सुन सकते हैं अप्पा भगवान है, कोई अम्मा भगवान है, तो अपने आप को भगवान। बट शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि जो मायावादा फिलोसफी है उसमें बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक सेंस में ये सत्य है, या अहम ब्रह्मास्मि, हम सब जो है गॉड है। क्यों? गॉड का दूसरा परिभाषा है कंट्रोलर। या तो हम देखते हैं घर में जो प्रभु है, जो हस्बैंड है, वो वाइफ को और बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो वाइफ रहती है, अपना पति को और बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर सब मिलके समाज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कुछ मायने तक हम लोग एक एक टाइप में छोटे छोटे कंट्रोलर हैं। या बट शास्त्र ये बोलता है जो भगवान है वो बेसिकली जो भौतिक दुनिया का जो चार कंडीशन है उससे परे है। उससे परे है। वो क्या है चार कंडीशन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। या तो अगर हम इसमें ग्रस्त है तो हम भगवान नहीं हो सकते। या तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 7.14 में, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। ट्रांसलेशन में क्या बोलते हैं भगवान? द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट वन हु हैव सरेंडर अनटू मी कैन इजीली क्रॉस ओवर इट। या तो हम देख सकते हैं हम भगवान के शरण में हैं, भगवत भक्त के शरण में हैं, तो हम ये जो त्रिगुण है एक झटके में नहीं, धीरे धीरे करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं सत्व गुण में हम जाए, फिर सत्व गुण से हम ऊपर के स्तर में जाए। या तो हमको ये समझना चाहिए जो 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 इंसान फ्री होना चाहता है, क्या बोलते हैं, मुक्त संग होना चाहता है, मुक्त संग से जायते होना चाहता है, उसको भगवान की शरण लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति की शरण लेना पड़ेगा, और स्क्रिप्चर का शरण लेना पड़ेगा। भगवान जो है और एक चैप्टर में भगवत गीता का 18.54 में बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते परम। इसका ट्रांसलेशन है, वन हु इज दस ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड at once realize the supreme Brahman and become fully joyful. He never lament or desire to having anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attained pure devotional services unto me. Yeah? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी पहला इसमें क्या होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसन्न आत्मा, और जो हमारा श्लोक में जो है एवं प्रसन्न मनसो, या जो प्रसन्न मनस और प्रसन्न आत्मा ये दोनों सेम है। या ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि एक 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 जो इंसान है वो ब्रह्मभूत मतलब भगवान के स्तर पे, या भगवान का भक्ति के स्तर पे जो पहुंच जाता है, वो समझता है कि भगवान ही सभी करता धरता है, तो उसका जो मन है वो ऑटोमेटिकली प्रसन्न होता है, और उसका आत्मा भी प्रसन्न। आत्मा तो ऑलरेडी प्रसन्न ही है। अभी हम अप्रसन्न क्यों हैं? क्योंकि हम ये भौतिक जगत में आए हैं और माया से ग्रस्त हैं, इसके लिए हम प्रसन्न हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसन्न आत्मा और प्रसन्न मनसा ये दोनों सेम है। तो हम एक दो उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवतम से। भागवतम में 9वां स्कंद में चैप्टर 4 में श्लोका नंबर 18 से 20 तक अम्बरीश महाराज का उल्लेख आता है। अम्बरीश महाराज जो है भगवान के परम भक्त थे। वो क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली ही इज अ किंग, या चक्रवर्ती थे, इतने पावरफुल थे कि पूरा खंड को रूल करते थे। बट वो अंदर से इतने इतने सौम्य थे, इतने हम्बल थे। वो इवन भगवान का टेम्पल जाने के लिए वो चैरेट में नहीं जाते थे, वो चल के बिना पाद रक्षा का वो जाते थे। मतलब अपना जितने भी अंग है भगवान का सेवा में वो यूटिलाइज करते थे। ऐसे करके उनका जो राज्य था वो सब भी ऐसा फॉलो करने लगे, तो उनका प्रचार जो है, बहुत प्रसिद्धि जो है वो बढ़ता चला गया।
तभी एक मुनि थे, उनका नाम था दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि जैसे ही हम सुनते हैं हमको समझ में आता है कि क्रोधित रहते थे हमेशा, हम वो क्रोध में रहते थे। तो वो दुर्वासा मुनि जब ये सुनते हैं तो फिर वो एकादशी के जो दूसरा दिन है, द्वादशी के दिन, वो अम्बरीश महाराज को इंटीमेट उनको बता के उनके आस्थान में आते हैं। जैसे आते हैं उनको अति अति अच्छी तरह से आतिथ्य करते हैं अम्बरीश महाराज। आतिथ्य करने के बाद दुर्वास मुनि क्या बोलते हैं, राजन आप रुको, मैं आपका आतिथ्य को स्वीकार करूंगा, बट मैं पहले जाके नदी में या इसमें स्नान करके आऊंगा, फिर मैं आपका आतिथ्य। तो महाराज बोलते हैं ठीक है आप जाइए। और जाके जानबूझ के वो वहां पे रुक जाते, धीरे धीरे करके नहाने लगते। क्यों? क्योंकि हमको एकादशी के बाद हम क्या करते हैं, एक एक जो फास्ट ब्रेक करना है, पारण टाइम बोलते हैं, उसी टाइम में हमको अन्न प्रसाद ग्रहण करना है। तो ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अम्बरीश महाराज रुकते हैं, फिर देखते हैं कि पारण टाइम तो शुरू हो गया, खत्म होने को आया। तो अपना, जब उनके जो आस्थान में जो विद्वान थे उनको पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक विद्वान बोलता है, राजन आप पानी पी के भी अपना जो फास्टिंग है, जो आपने जो ये किया है, उपवास किया है कल, उसको आप तोड़ सकते हैं। ऐसा बोलते ही वो पानी पी लेते हैं। क्योंकि दुर्वास मुनि जो है, उनको उनको सभी चीज का ज्ञात होता था अपने तपोबल से। जैसे ही महाराज पानी पीते हैं दुर्वास मुनि को समझ में आते हैं, वो तुरंत आते हैं, वो बोलते हैं कि ऋषि को या सन्यासी को आप आतिथ्य करने से पहले आपने प्रसाद पाया। ऐसा बोलने के बाद वो क्रोधित होके वो देखते हैं, अपना जो बाल है निकाल के जमीन में पटकते हैं, उससे दो 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 राक्षस हैं जन्म लेते हैं, और वो इमीडिएटली अम्बरीश अम्बरीश महाराज के ऊपर अटैक करने आते हैं। पर अम्बरीश महाराज एकदम प्रसन्न मनस से रहते हैं। वो एक एक क्योंकि राज है उनके पास, तो क्या बोलते हैं, शस्त्र तो रहता ही, बट वो अटैक नहीं करते। वो अति हम्बलनेस से वो राक्षस को प्रणाम करते हैं। जैसे ही ये सिचुएशन जो है, भगवान के जो महाविष्णु या नारायण के जो आयुध है, सुदर्शन चक्र, वो देखते हैं, वो तुरंत विद इन सेकेंड वो आते हैं और वो दोनों राक्षस को संहार करते हैं। और राक्षस को संहार करने के बाद तुरंत दुर्वास मुनि के पीछे पड़ जाते हैं। दुर्वास मुनि एक पूरा साल घूम के फिर महाविष्णु के पास, सब पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शंकर के पास जाते हैं, फिर विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु तभी रेस्ट कर रहे रहते हैं। हाँ? तो बोलते हैं मैंने उनको आज्ञा नहीं दी कि आपको, तो क्योंकि यहाँ देख सकते हैं जो भगवान के जो अस्त्र शस्त्र है वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं डिवोटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो बोलते हैं आप जाके इससे आपको छुटकारा पाना है तो आपको अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा, वही आपको इसका छुटकारा दे सके। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्ता पराधीन। या तो फिर से वो अम्बरीश महाराज के पास आते हैं। फिर वो जब भी क्षमा बोलते हैं, मैं क्षमा करने वाला हूँ, जैसे ये बोलते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भले वो राजा हो या प्रजा हो, सबको भगवत भक्ति करना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, श्रीमद् भागवतम से कैंटो 7 चैप्टर 5 से हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है। वेरी संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज तो भगवान भगवान का जो ज्ञान है वो माँ के गर्भ से उन्होंने सुना, माँ के गर्भ में थे, तभी उनको समझ में आके भगवत तत्व विज्ञान क्या है। क्यों? क्योंकि उनका एसोसिएशन नारद मुनि से हुआ। परम ज्ञानी है, तो वो रोज भगवान के बारे में बोलते हैं। तो उनकी माँ जो है कयादू, वो सो जाते हैं बहुत बार सुनते सुनते, क्योंकि ऐसा बोला जाता है। और ये सबको हमको ज्ञान रखना चाहिए। जब भी माता जो है गर्भिणी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी हमारा यात्रा में देखा है, बहुत सारे माताएं हैं यहाँ। हम हर 6 महीने में एक एक नया भक्त हमारा इसमें आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट ये भगवत भक्ति की, जब भी हम माता जो है गर्भिणी रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो सोल सुनता है, या वो भगवत भक्ति सुनता है, और वो फिर भक्त बन के उभरेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रहलाद महाराज को देख सकते हैं कि वो जैसे पैदा हुए प्रसन्न थे, हमेशा भगवत भक्ति में थे। और फिर लास्ट में क्या हुआ, बहुत बार प्रताड़ित किया गया उनका पिता के द्वारा, यहाँ तक कि उनका जीवन जो है वो भी लेने का प्रयत्न किया, बट कुछ नहीं हुआ। फिर भगवान जो है नरसिंह रूप में आए, और उन्होंने
उनका पिता का वध किया, हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर इतने क्रोधित थे भगवान, क्योंकि मेरे वजह से आपने इतना सहा। भगवान शांत होने का नाम नहीं लेते, सभी जितने भी देवता है कोई भी जाना नहीं, लक्ष्मी जी भी जाना नहीं चाहती थी। फिर ब्रह्मा जी जो है प्रहलाद को आगे करते, जैसे प्रहलाद को देखते हैं तो लिटरली प्रहलाद को चाटते हैं। प्रहलाद को अपने गोदी पे बिठाते हैं और प्रहलाद को बोलते हैं मांगो, कुछ तो मांगो मेरे से। प्रहलाद देखो कितना भगवत तत्व जाने के बाद कितना हम्बल हो जाता। प्रहलाद अपने लिए कुछ नहीं मांगते, प्रहलाद जी क्या मांगते हैं, मेरा पिता का उद्धार करो। हाँ, अज्ञानता में उसने ऐसा किया है, उनका उद्धार। तो भगवान ये बोलते हैं खाली उनका उद्धार नहीं, पीछे का जो 7 जनरेशन है और आगे आने वाला 21 जनरेशन है, सबका उद्धार हो जाएगा। तो भगवत भक्ति करने से कितना लोगों का उद्धार हो जाएगा ये हम समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ध्रुव महाराज है, बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। और कलयुग में भी हम बहुत सारे उदाहरण, हर एक स्टेट में, हम हर राज्य में जाएंगे इंडिया में, आपको एक ऐसा ऐसा ना भक्त मिलेगा जिसको भगवान ने अपना कृपा कटाक्ष की, और कोई कोई तो अपना शरीर के साथ भगवत धाम चले गए। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। तो ये खाली शास्त्र में लिखा हुआ उदाहरण नहीं है, ये सत्य घटना है। अभी से एक 500 साल में अंदर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया है भगवत भक्ति करते हुए। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि भगवत भक्ति जो भगवत योग है, डिवोशनल सर्विस है, उससे क्या होगा, प्रसन्न मनस हो जाएगा या प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, माया हम पे अटैक नहीं करेगी, हम माया पे नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्त जो है कभी अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है, क्यों जॉयफुल रहता है, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट है कृष्ण से है। कृष्ण से कांटेक्ट होने के बाद वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी अनहैप्पी दुखी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये टेस्ट है, या हमको ये कोशिश करना है। अगर हम अनहैप्पी है, हो सकते हैं मटेरियल दुनिया में ऐसा कोई हमेशा के लिए हैप्पी नहीं रह सकता, बट अभी जब भी हम अनहैप्पी हो जाते हैं, हमको भगवत भक्त जो है, हमारा शिक्षा गुरु है, हमारा दीक्षा गुरु है, इनका शरण में हमको जाना चाहिए या धाम में जाना चाहिए। तो इससे क्या है, माया का जो अटैक प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं अपने उपदेशामृत में, वो बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 3rd श्लोका में क्या बोलते हैं, उत्साहान निश्चयात धीरात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तिम शद्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। या तो इसका तात्पर्य ये बोलते हैं कि जो हमको है 6 प्रिंसिपल, या देर आर 6 प्रिंसिपल फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विसेज। प्योर डिवोशनल करके 6 चीज को हमको पालन करना है। वो क्या है, बीइंग एंथुसियास्टिक, या मतलब उत्साह में रहना है। दूसरा क्या है, एंडोरिंग विथ कॉन्फिडेंस, धैर्य के दृढ़ता के साथ हमको रहना है, या इसमें ये मूवमेंट में। या तो तीसरा क्या है, बीइंग पेशेंट, धैर्य के साथ रहना है। हमको हमारा जो आपा है वो खोना नहीं है, हमको हमेशा धैर्यता के साथ रहना है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड फॉलोइंग नवविध भक्ति। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जैसे हम भक्ति योग में आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो हमको क्या बोलते हैं, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड देन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उसमें आता है श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्ति में, ये सब हमको करना है, रिमेम्बरिंग लॉर्ड ये हमको करना है। उसके बाद में अबंडन द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा भक्त के संग में रहे। या हम ऑफिस में नॉन भक्त के संग में रहे तो फिर भी हम वो जो है उसको दिखाए नहीं कि हम भक्त है आप नॉन भक्त है, ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए, बट उनका संग नहीं करना चाहिए। उल्टा ऐसा होना चाहिए कि हमारा संग से वो चेंज हो जाए। ऐसे प्रभुपाद जी ने 11 बार भ्रमण किया और बहुत लोगों को भक्त बनाया और बहुत मंदिर बनाया। या तो हम शुद्ध भक्त के संग में रहने से हमको वो क्वालिटी। और छठवा क्या बोलते हैं, फॉलो द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य, हमको अनुकरण करना चाहिए प्रीवियस आचार्य का। हमको ये 6 चीज हम करने से हमारा जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विसेज है, वो बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम हमेशा एंथुसियास्टिक, हम हमेशा उत्साह में रहेंगे। या तो ये बताएं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कृत्रिम तरीके से, मतलब आर्टिफिशियली हम ऐसे ए स्तर को नहीं, उत्साह में नहीं रह सकते। या
एकाली भगवत भक्ति करने से। उसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं प्रभुपाल? जब भी हम मंदिर विजिट करते हैं, कोई भी मंदिर विजिट करते हैं या भगवान का मंदिर विजिट करते हैं, तुरंत हमारा जो मन है प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ऐसा रहता है, तो हमको हमारा मन जो है वो संतोष। ये एक छोटा सा टेस्ट है। या इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारा घर को ही हमको वृंदावन बनाना है, हमारे घर में हमको भगवान को लाना है, उसका सेवा करना है। तो उसकी उससे क्या होगा? हम हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे और हमारा मन प्रसन्न होगा। और जो भक्ति योग को त्यागता है, इसका मतलब वो माया में है, ये बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है कि हम सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग जो है, हम नहीं उठ पा रहे हैं, हमारा चैंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमको सोचना है कि हम माया में हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी ने जितने भी दुनिया में मंदिर हैं, सब जगह जो मंगल आरती है, संसार दावानल निटलो, इससे शुरू होता है। या बट जो वृंदावन है, जो कृष्ण का भूमि है, वहां पे क्या क्या किस किस भजन से शुरू होता है? जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कौन बोलता है ये? गौर चंद्र बोलता है। ही इज नन अदर देन कृष्ण। बोलता है जीव जागो। जीव जागो मतलब, इसका मतलब क्या है? अगर हम ज्यादा सोते हैं तो हमको ये समझना है कि हम माया के ग्रस्त में हैं। अतिरेक सोना माया का लक्षण मतलब क्या है? या तमोगुण का लक्षण मतलब क्या है? अतिरेक सोना। और दूसरा लक्षण है आलस्य, लेजीनेस। ये भी जो लक्षण है, ये अपना तमोगुण का लक्षण है। वैसे ही रजोगुण का क्या लक्षण है? रजोगुण का लक्षण ओवर एक्टिव होना, बहुत सारा एक्टिविटी करते रहना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको, ये जो है मंकी है, मतलब बंदर है। बंदर कैसा? बंदर एक जगह पे नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उछल कूद करते रहता है। या ये निकला, वो निकला, वो खींचा, ये खींचा, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो वो जो है, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमको बहुत रजोगुण में भी नहीं रहना है, बहुत तमोगुण में भी नहीं रहना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको मूर्खता नहीं दिखानी है। हाँ? मूर्खता जो है वो बहुत डेंजरस है। मतलब हम कम एक्टिव है वो चलेगा, बट हमको बहुत ज्यादा जो एक्टिविटी है वो नहीं करना है। तो उससे क्या होगा? हम गुडनेस में नहीं जा सकते। और तीसरा वाला जो है वो सत्व गुण है। सत्व गुण में हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको कोशिश करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चैंटिंग करना है, मंगल आरती करना है। जो भी इनिशिएटेड ड्यूटी यहाँ पे वो सब करते हैं, जस्ट मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने बोला। तो जो बाकी भक्त हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, उनको भी, हमको ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान का मूर्ति लाके ही शुरू करना है अपनी भक्ति। ऐसा नहीं, हम अपना घर में फोटो रख के भी वो हम कर सकते हैं। चैंटिंग तो कहाँ पे भी कर सकते हैं। या तो लास्ट वीक में इस ग्रेस कृपाणु प्रभु ने हमको बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो सत्व गुण है हम कैसे उसको पा सकते हैं। और उसके ऊपर भी जो है प्योर मोड ऑफ गुडनेस। या उन्होंने बोला कि वासुदेव सत्व। या तो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बोला, तो हम उसको कैसे पा सकते हैं? तो ये सब पाने के लिए हमको क्या होना जरूरी है? हमारा मन जो है प्रसन्न मनसो, एवं प्रसन्न मनसो, ये बहुत जरूरी है। तो ये करने से जो लेजीनेस है, जो जो मोड ऑफ फैशन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है, उससे हम धीरे धीरे करके हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त संगत से जायते। प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि बहुत जो है क्या बोलते हैं, हम लोग एक्टिविटी करते हैं या मतलब बहुत सारे गॉसिप करते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। या तो हमको गॉसिप करना, किसके ऊपर गॉसिप करना है? हमको आध्यात्मिक चर्चा करना है। इसके लिए हमारा जो यात्रा है, अभी हमारा कंडीशन खराब है, फिर भी हमारा संग होना चाहिए। और ये व्हाट्सअप क्या बोलते हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग हर हफ्ता सुनते हैं। और हम अभी कंडीशन में, खराब कंडीशन में है, तो हमारा जो यात्रा लीडर है, उन्होंने ऐसा प्रोवाइड किया है कि रोज हम जो भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, हम रिसाइट करते हैं। और फिर हम नरसिंह कवच बोलते हैं, भगवान का नाम। तो ये सब चीज बहुत अच्छा है। इसके लिए प्रभुपाद के मर्सी और जो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, उनके एफर्ट के वजह से हम लोग क्या करते हैं, रोज हम अपना साधना कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि जो भक्ति है इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक्चुअली आप देखेंगे जो प्रीवियस युगों में है, हम बहुत सारा क्या बोलते हैं साधना करने के बाद में हम जान पाते थे, जैसा भगवान ने बताया। हमको बहुत सा मनुष्यानाम सहस्र, बहुत सारे हमको ये करने के बाद हमको बट प्रभुपाद के मर्जी से हमारा जो भक्ति, हमारा जो स्टार्टिंग है वो भक्ति से होता है। कैसे होता है? हम श्रवण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। तो इससे हमारा जो है भगवत भक्ति जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 14.26 में, मय्या च यो विविचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ट्रांसलेशन क्या है? वन हु इज एंगेज्ड इन फुल डिवोशनल सर्विस, unfalling in all circumstances, at once transcendent in the mode of material nature, and thus he comes to the level of Brahman. Yeah? तो हमको हमको जो है भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो हमको डिवोशनल सर्विसेज करना है, हमको एंगेज होना है। ये भगवान खुद स्वयं बताते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोका 7 में ऐसा बताया गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च येद अयुत्युकम। ट्रांसलेशन है, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विसेज अनटू पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा वन इमीडिएटली एक्वायर कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आचार्य यहाँ पे बोलते हैं कि लिबरेशन मतलब क्या है? लिबरेशन मतलब भगवत नॉलेज प्राप्त करना। और दूसरा क्या है? भौतिक जगत से डिटैच होना। भौतिक जगत से अपना मुख जो है फेर लेना और भगवान की तरफ मुख करना। देखिए बहुत सिंपल चीज है, भगवान की तरफ हमको देखना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, तो उनका करुणा से हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो भी पहला आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा शिक्षा गुरु और गुरु माता ने बताया है कि हमको इमीडिएटली भगवत गीता नहीं शुरू करना चाहिए, हमको उनको थोड़ा बहुत उनको क्वालिफाई बनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हम ये इसका एक 12 हफ्ते का एक जो टॉक है ये हम करते हैं। उसमें क्या बताया जाता है, वो बताने के बाद मैं स्वयं भी पहली बार जो हमारा जो कौन सा यात्रा था वो बहरीन का जो है बोलते हैं हम लोग बलराम देश जो था, बलराम देश में हम थे। तो कथा में बैठते, आप नहीं हो, आप नहीं हो मतलब क्या है, मैं ही हूँ। या फिर वो बोलते हैं कि ये बॉडी आप नहीं हो, या आप क्या हो? स्पिरिट सोल हो। ये स्पिरिट सोल का इंपॉर्टेंट ये एंगेजमेंट क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ये यहाँ से शुरू होता है प्रभुपाद के मर्सी से। तो भक्ति योग जो है बहुत स्ट्रांग है। भक्ति योग जो करता है वो अपना बॉडी को भी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? हम महीने में 2 जो व्रत हैं उसको महान व्रत बताया गया है, जो एकादशी है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमारा साधु संत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कल्पों से बोलते आ रहे हैं कि हमको ये 2 व्रत, जो एक व्रत जो है वो कंपलसरी करना है, वो है एकादशी। और इसी को ही अलग अलग तरीके से बोल के नोबेल पुरस्कार ये वो लेते हैं। बट हमारा शास्त्र जो है ये बहुत पहले से बोल रहा है, साधु संत हमेशा बोलते हैं कि हमको करना चाहिए। वो करने से क्या हो, अपना बॉडी भी अच्छा रहेगा, कोई भी रोग रुझान नहीं आएगा और हम मुक्त हो सकते हैं। ये भौतिक जगत से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने परपोर्ट में, शास्त्र के हिसाब से जो कर्मी हो, जो ज्ञानी हो या योगी हो, या ये सबको भगवत भक्ति तो करना ही है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है, श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 3 श्लोका 10 में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषं पर। इसका ट्रांसलेशन है, अ पर्सन who has broader intelligence, whether he is full of all the material desire,
without any material desire or desiring liberation must by all means worship supreme whole to the personality of Godhead. हाँ, जो ज्ञानी हो, जो कर्मी हो, या जो क्या बोलते हैं योगी हो, सबको भगवत भक्ति करना है। जो भी हो, भगवत भक्ति जो है कंपलसरी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जो स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हमेशा आनंदमय है। इसमें कोई कोई टाइप का चिंता नहीं है, कोई टाइप का डिप्रेशन नहीं है। हाँ, हम देखते हैं कि जो भौतिक दुनिया है, बहुत सारे जो लोग हैं डिप्रेशन में चल, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। अभी थोड़े साल पहले मैं जब भी पढ़ा तो हो गया, तो लोग ऐसे करते हैं उसको इंग्लिश हिंदी में मेरे को अनुवाद करने नहीं आता है, बोलते हैं काउ कैटलिंग। या तो पाश्चात्य देश में क्या करते हैं, तो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए गाय जो है उसमें से भी ज्यादा पैसा किसको है, अगर आपको बछड़े का संग करना है ज्यादा पैसा देना है। या बट हमारा शास्त्र बोलता है गो गो गाय है वो माता है, उसको माता के रूप में हम पूछते हैं। या क्योंकि उसमें सभी लोग वास करते हैं। उसका हर कण 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 हमारा यूजफुल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक गाय और 2 बैल से हम आराम से, थोड़ा भूमि रहेगा तो आराम से, हमको और किसी चीज का जरूरत नहीं है। या तो हम यहाँ देख सकते हैं हम आनंदमय है, जॉयफुल रह सकते हैं। तो ये बताते हैं। तो मटेरियल लाइफ क्या है, ये प्रोपा जी बोलते हैं ये मिजरेबल है, टेम्परवरी भी है, इसमें यहाँ पे कोई भी शाश्वता नहीं है। या बट स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या है, इटरनली ब्लिसफुल लाइफ एंड नॉलेज भी हमको भगवान का मिलता है। तो एक उदाहरण एक क्लास में सुना कि जो मायावादी फिलॉसफी है उसको मद्देनजर में ये उदाहरण है कि समझिए हमको किसी एक रूम में हमको बंद करके रखते हैं। और वहां पे हमको सभी सुविधा दिया जाता है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सब सुविधा, बट हम अकेले हैं, कोई किसी से हम देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। कितना देर रह सकते हैं हम लोग? हमको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लोनलीनेस फील हो जाएगा हमको, हम कोशिश करेंगे वो रूम से बाहर आने का। वैसे दूसरा एक सिचुएशन ऐसा बोलते हैं कि हमने कितना भी तरक्की की है, हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिकली हम बहुत ऊपर, धरती के ऊपर गए, बहुत ऊपर ऊपर हम उड़ रहे हैं, कितना देर तक आप उड़ सकते हैं? भूमि भूमि का जो आकर्षण, उससे बाहर जाने के बाद तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां पे हम चल फिर भी नहीं सकते। या तो हमको क्या है, वापस हमको क्या लगता है कि हमको ये भौतिक शरीर लेके हमको वापस धरती में आना है। या आप आते भी है, वो नहीं नहीं रह सकते वहां पे, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। या थोड़ा दिन के लिए स्टडी के लिए रह सकते, बट तो ऐसे ही हम, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भगवत भक्त नहीं है। या बट हम क्या करते हैं, और ये सिद्धांत के उस हिसाब से ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम जो है अच्छा ऑस्टेरिटी करके या तपस्या करके हम भगवत का जो ज्योत है, जो 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 ब्रह्म ज्योत है, जो ब्रह्मन स्तर है, तो वहां पे हम जा सकते हैं। या वहां जाने के बाद हमको जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ेगा, बट वहां पे क्या नहीं, क्या मिसिंग है, आनंद मिसिंग है। या तो आनंद जब मिसिंग है तभी वो वापस ये धरती पे आते हैं। फिर वो आनंद पाने के लिए क्या, क्योंकि उनके पास अच्छी सी सिद्धि रहती है, उनको अच्छे जगह पे जन्म मिलता है, भगवान अच्छे, पर वो क्या करते हैं, फिर अपना जो धन है हॉस्पिटल बनाने में या बहुत सारा चीज बना के संतोष संतोष पाते हैं। या तो हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको उसमें क्या बोलते हैं, जगत मिथ्या बोलते हैं। या जगत मिथ्या बोल के ऊपर जाते हैं, फिर से उनको मिथ्या जगत में आना पड़ता है। तो हमको ये समझना है। और हम ये भी उदाहरण देखते हैं कि हमारा पॉलिटिशियन जो है वोट लेने के लिए क्या करते हैं, जब जैसे इलेक्शन आता है हर एक मंदिर में जाते हैं ये बताने के लिए मैं भक्त हूँ। यहाँ ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, और जैसे ही उनका पॉलिटिक्स का जो मतलब फिनिश हो जाता है, तुरंत कृष्ण को भूल जाता है, फिर वो कोई टेम्पल में नहीं जाएंगे। या बट प्योर जो भक्त है वो ऐसा नहीं है। या उसका पहला जो इंटेंशन है, इंटरेस्ट है, वो है कृष्ण, भगवान कृष्ण को हम कैसे सेटिस्फाई करें, भगवान भक्त को हम कैसे सेटिस्फाई करें। तो इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं, अर्जुन ने जो है जैसे भगवान ने बताया वैसे उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने
और आप देख सकते हैं वो क्षत्रिय थे, अच्छा पॉलिटिशियन भी थे, और वो भगवान का जितने भी वाक्य हैं वो यथारूप उन्होंने फॉलो किया, और उन्होंने अपना जो राज्य है वो पाया, जो जो हम भगवान भक्ति करके भी हम राज्य पा सकते हैं। या इसमें अर्जुन जो है बहुत अच्छा उदाहरण है, हम ले सकते हैं। तो हमको अलग तरह का पॉलिटिकल, अलग तरह का पॉलिटिशियन ऐसा नहीं नहीं बनना है। मेरे पास समय है और थोड़ा, और एक 5-1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। सो देयरफॉर ऐसे बोलते हैं कि हमको थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है भक्त चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा दुनिया है 100% कृष्ण कॉन्शियस नहीं बना तो भी चलेगा, एटलीस्ट 5% हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 5%, मतलब हम 1% से भी कम है। इतने भी भगवान को अच्छी तरह से फॉलो करते हो 1% से, तो 5% भी हम होएंगे तो जो हो गए तो दुनिया का जितने भी चैलेंजेस है, ये यहाँ देख सकते हैं कितना हम अच्छी तरह से थे गल्फ में। हाँ, 1 महीने में ऐसा हमारा परिस्थिति है, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग जाने के, इसमें हमको पता नहीं कभी क्या होने वाला है। या तो ये सब चीज क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति नहीं है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवत्र जनः स्यात् परमं कुरुते शयात प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसका ट्रांसलेशन है, whenever the action a great man performs, common man follows, and whatever standard he set by example of act, all the word is pursuing। या तो हमको लीडर जो है अम्बरीश महाराज जैसे हैं, तो पूरा जो उनका जो राज्य है, उसका प्रजा जो है वो भगवत भक्ति में जा सकते हैं। तो हमको अच्छे अच्छे लीडर चाहिए, उससे हमारा जो दुनिया में जो जितने भी क्या बोलते हैं क्लेश है वो सब चले जाए। या तो इसके लिए हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटी में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि हम अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते हैं या हम रिफॉर्म नहीं होते तो हम में और जो जानवर है उसमें कोई फर्क नहीं। शास्त्र इसके लिए बोलता है कि हमको रिफॉर्मेशन होना है, उसके लिए संस्कार करना है, रिफॉर्मेशन चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, कल्चरल लाइफ, ये सब चाहिए। क्योंकि कल्चरल लाइफ करते करते प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको किस स्तर पे लेके जाएगा, वो ब्राह्मण ब्राह्मण होने के लिए लेके जाएगा। इसके लिए ये हमारा प्रथा में भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारा इनिशिएशन होता है फिर से हमको अच्छी तरह से साधना करके हमको ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेना चाहिए। जितने भी भक्त हैं, हमारा शिक्षा गुरु हमको इनकरेज करते हैं कि हमको हम 100% ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेना है। तो क्यों? क्योंकि हमको एक दिन वैष्णव बनना है। तो ब्राह्मण के बारे में प्रभुपा जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि वो किससे ऊपर है, शूद्र से, बाकी जितने भी है वैश्य से या क्षत्रिय से, ब्राह्मण जो है ऊपर है। बट हमको ब्राह्मण से भी ऊपर जाना है। क्योंकि हमको हमको वैष्णव बनना है। बट आप ज्यादातर दुनिया के लोगों को आप बोलेंगे कि कृष्ण कॉन्शियस में आओ, तो वो बोलेंगे कि क्या इसमें करना है, तो हम इमिडिएटली बोलना शुरू करते हैं। वैसा बोलना भी चाहिए, बट इनिशियली हमको प्रभुपा जी ने क्या किया, प्रभुपा जी ने प्रसाद खिला खिला के भगवत भक्त बनाया। तो हमको इमिडिएटली उनको बोलना नहीं चाहिए, ये जरूरी है, बट धीरे धीरे करके बोलना चाहिए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वो क्या पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि हमको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, मीटिंग नहीं करना चाहिए, अवैध श्री संग नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलते वो हंसने लगते हैं, वो ये सब चीज बहुत मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते, तो फिर वो धो जाते हैं। तो हमको हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके, जैसा भगवान ने बताया कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयात्, या हमको वो सिद्धत्व पाना है। कैसे? हमको भगवत भक्ति करके। अगर नहीं करेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग का जीवन जो है हॉक्स और डॉग्स का जैसा हो जाएगा। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसको उसको उसका उल्लेख कैसा दिया गया है, ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, तो ब्रह्म को कौन जानता है, वो ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण के बाद में हमको वैष्णव बनना है। क्योंकि वैष्णव जो है वो समझ सकता है कि
परम कृष्ण कौन है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, ये हम वो समझ सकते हैं। फिर उससे क्या होगा, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते। तो हमको वन कैन मेक प्रोग्रेस from the Brahman platform to Paramatma platform, and then he can elevate himself into personality of Godhead understanding। या तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मणेटिकल स्टेज का ये एडवांटेज है। ब्राह्मण तो हमको बनना है कैसे ही, और उसके बाद में हमको ये करके उत्तीर्ण करना है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो महाप्रभु जो है वो सच्ची में ये युग का जो है अवतारी पुरुष है। ये ऐसा अवतार है उनका, तो उन्होंने ये धरातल में आके कृष्ण को उन्होंने बांटा। उन्होंने क्या बोला, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमको यहाँ पे मुश्किल है, बट हमारा हिंदू बांधव, हमारा जो फ्रेंड्स है हमारे, तो उनको कोशिश करना चाहिए, हाँ, कृष्ण उपदेश करने का, हमको जुड़ाना चाहिए हमारा संघ में, और हमको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि ये जो भक्ति हमने समझ लिया तो उनको देने के लिए हमको उदार होना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान कृष्ण है, वो क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरे को सरेंडर हो जाओ। हाँ, फिर मैं आप सरेंडर हो जाओगे, फिर मैं भक्ति दूंगा। या बट चैतन्य महाप्रभु ऐसे है कि वो लेफ्ट राइट सेंटर, हमारा जो क्या बोलते हैं पात्र, हमारा क्वालिफिकेशन ना देते हुए उन्होंने सबको कृष्ण भक्ति पाठ उनको अपोज किया, फिर भी उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है वो सब में बांटा, और उसको प्रभुपाद जी ने लेके पूरा पाश्चात्य देश में बांटा। तो मैं ये बोल के मैं कंक्लूड करूंगा। यहाँ पे ऐसे प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं, दिस इज द चैतन्य महाप्रभु who is Krishna, and he has come to in the form of Krishna Chaitanya to distribute himself. Therefore, he has been recognized. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. The most magnificent form, yeah, in order in other incarnation. Even Lord Ramachandra, Bhagwan Krishna, yeah, they are not so liberal, yeah, but Chaitanya Mahaprabhu is so liberal, yeah. So Chaitanya Mahaprabhu ki jai, श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये बोल के मेरा वाणी को मैं विराम करता हूँ। इसमें कोई भी अच्छा सा मैंने बता पाया तो वो मेरा शिक्षा गुरु, मेरे जितने भी यात्रा के शिक्षा गुरु हैं उनका जो शरण लेने से, उनका जो ज्ञान लेने से ये मैं उल्लेख कर पाया। और इसमें कोई भी त्रुटि है, ये मेरा अज्ञानता के वजह से है, तो कृपया मेरे को क्षमा कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण रसना प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यार इवन वेरी नेक्टेरियन सेशन, so thank you so much. I request the devotees, any questions, please put forward to our His Grace Radha Krishna Prabhu. So this is a question answer session. Any devotees having any questions, please ask. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा आपकी थी, बहुत ही सुंदर कथा थी, बहुत आनंद आया प्रभु को। और आपने साइंटिफिकली, इमोशनली क्या करना है सब कुछ आपने मिला के एक अच्छा कंसोलिडेटेड टैबलेट दिया है सबको। सो प्रभु, इसमें ना साइंटिफिक नॉलेज के बारे में बताया है, तो आपने वो कवर किया है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। प्रभु जी, मैं जानता हूँ प्रभु आप ये जानते हैं, बट
सभी भक्तों का प्यूरिफिकेशन के लिए पूछते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज, जहाँ तक मेरा समझ है, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जो भौतिक ज्ञान क्या है, भौतिक ज्ञान जो है, जितना कंफर्ट हम लूट सकते हैं, क्या हमने हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पंखा बनाया, एसी बनाया, यहाँ पे बहुत तो ये सब नॉलेज जो है वो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है। हम एक जगह से दूसरे जगह कुछ ही घंटों में उड़ के जा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे कितने भी दूर हम मोबाइल से बात कर सकते हैं। अभी तो इतना मुश्किल है कि बैठे बैठे एक बटन दबाने से आके किसी को मार भी सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। क्या तो साइंटिफिक नॉलेज ये है कि हम देख सकते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, आचार्य ऐसे बोलते हैं, कण कण में बसे हैं। हम एक धरती है, उसको नाप नहीं सकते, इतना बड़ा धरती है। ये जो मटेरियल साइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर हम और आगे पढ़ेंगे, जो सूर्य है, या वो रोज हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि धरती से कई गुना बड़ा है, और वो प्रकाशित भी है। और उसको कहाँ पे भी ऐसा हैंग हैंग किया हुआ नहीं है, वो मतलब फ्लोट हो रहा है। या तो वैसे इसका मतलब धरती भी फ्लोट हो रहा है, सभी चीज फ्लोट हो रहा है। या तो हम भगवत मतलब साइंटिफिक नॉलेज क्या समझ सकते हैं कि भगवान जो है कण कण में, वैसे तो हमारे शरीर में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये पूरा दुनिया बनाया, तो बनाने के बाद अपना अपना कर्म के हिसाब से उन्होंने सबको, जितने भी 84 योनि है, उसको सृष्टि किया, बट कुछ मुंह नहीं हो रहा था। या ब्रह्मा जी को समझ भी नहीं आया, जो भगवान का आदेश है उसके हिसाब से मैंने किया है। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया। फिर जो विष्णु जो है, क्षीरोदक्षा विष्णु, वो एक्सपांड हुए परमात्मा के रूप में। जो परमात्मा के रूप में एक्सपांड होके क्या क्या, वो सब जगह गए। या जो साइंटिफिक नॉलेज है, हम समझ सकते हैं कि जो दिन रात होता है, जो भी काल चक्र घूमता है, उसके पीछे भगवान का हाथ है। ये सबसे बड़ा साइंटिफिक नॉलेज है। तो ये हम जान पाएंगे, तो हमको जो हमारा जो मटेरियल साइंस है, जो हम चांद पे गए या हम जहाँ पे भी गए, वो हमको बहुत क्षणिक लगेगा। या तो भगवत भक्ति जो है, ये सबका आंसर है। और भगवत भक्ति करने करने से हमको ये जो नॉलेज है, वो धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं, अनफोल्ड हो जाएगा, और हम उसको ज्यादा करके समझ पाते हैं। मेरा छोटा क्या बोलते हैं, नॉलेज के हिसाब से मैंने बताया प्रभु। आई डोंट नो वेदर आई हैव आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये भी आग्रह कर सकता हूँ, कोई यहाँ पे बहुत सारे उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनको लगता है कि इसको और अच्छी तरह से बताना है, हर ग्रेस सच्ची यशोदा माता है, वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। आपने एक्चुअली ज्ञान तत्व को पकड़ा था कि आप जो बहरीन का बात किए ना, कि यहाँ पे बता रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, तो वो ज्ञान एक्चुअली, और उसको अप्लाई करके आप अभी जो बताया उसका ऊपर से हम समझ सकते हैं वसूली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू हरे फॉर। कृष्ण, हरे कृष्ण। और more questions? ये विद्या माता जी, दीनपालका प्रभु wants to say something. yeah, slowly. Vidya Mataji put a chart. Mataji, do you have any question on this? Vidya Mataji? No, Prabhuji, no. Thank you so much No. for a wonderful class, Prabhuji. Yeah. Divine Okay. class on Prasanna Manasa. Prabhuji gave so many references. I was Yeah. tired while writing. Some I missed some Chaitanya Charitamrita, which Madhya Lila or Adya Lila 3.3 point something Prabhuji mentioned. Sorry, Mata. It is I will say again. It is 3.3.99, Mata. Madhya Lila, Antya Lila. It's Antya Leela, Mata. Hare Krishna. Thank you. Yeah. It is exactly. I will tell you one more time as. It is basically 3.3.33. Thank you, Prabhuji. Sorry, Mata, it is 3.3.99. Thank you, Prabhuji. Thank you.
दीनपालक प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रश्न मत पूछिए प्रभु जी, आंसर बोल दीजिए। हरि हरि बोल। Hare Krishna. हरे कृष्ण। So, just a simple question to everyone that यहाँ पर purport में लिखा है कि ब्राह्मणिकल ब्राह्मणा बनना है एक डिवोटी होने का अधिकार, यानी कि so one cannot become a devotee unless he qualifies to become a brahmana. तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे प्रभु जी प्रभुपाद जी ने उल्लेख किया है, या हम भगवत गीता का भी उल्लेख ले सकते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ भोगने के लिए आया है, और इसमें से सबसे जो भगवत प्राप्ति करने का क्वालिफाई है वो है ब्राह्मण। या तो हमको ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना है? ब्राह्मण बनने के लिए बहुत सारा याग हवन ये सब करना पड़ता था पहले इसमें। पर प्रभुपाद जी के मर्सी है, हमारा जो भक्ति है या ब्राह्मणिटिकल लेवल से शुरू होता है। मतलब हम भगवत भक्ति का जो आस्वाद है वो हम कृष्ण का जो नाम स्मरण सुन के, कृष्ण का कथा सुन के ये करते हैं। बट शास्त्र के हिसाब से हमको ब्राह्मण बनना है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने जहां तक मैं समझ रहा हूँ एस्पिरेंट रखा। एस्पिरेंट के बाद गुरु आश्रय के बाद इनिशिएशन, जो गुरु का जो है क्या बोलते हैं, हम दीक्षा ले, और उसके बाद में हमारा जो चौथा जो है वो ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन। या तो ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेने के बाद हम क्वालिफाइड है। कोई भी मंदिर में अगर हमको पूजा करना है तो वो देखते हैं कि वो जो है वो ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन है कि नहीं है। या तो प्रभुपाद जी बोलते हरिनाम दीक्षा से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। बट ब्राह्मणिटिकल जो प्रथा है वो जरूरी है, और वो हम फॉलो बहुत साल करने के बाद फिर हम वैष्णव बन सकते हैं। या तो वैष्णव बनने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। तो हमको जितने भी हम इनिशिएटेड हैं, तो हमारा शिक्षा गुरु भी एनकरेज करते हैं, तो हमको एक ना एक दिन हमको ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेना है, और उसको जो जो चाहिए वो हमको पूरा करना है, और हमारा नॉलेज का स्तर है उस लेवल पे ले जाना है, फिर हमको ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेना है। इन अदर वर्ड में जहाँ तक मैंने सुना आचार्य से, सीनियर डिवोटी से, ऐसे बताते हैं कि एक बार आप ब्राह्मणिटिकल इनिशिएशन लेते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है महाराज से बहुत कम हो जाते हैं। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जो भी एक्ट करते हैं। या तो ये है। तो इससे क्या होता है, जैसा भी राजेश्वर प्रभु ने बोला, एंग्जाइटी जो चिंता है वो खत्म हो जाती है। या तो पहला हमको कोशिश करना है ब्राह्मण बनने के लिए, या ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन के लिए। हम कोई भी इसमें हमारा जन्म हुआ हो, या ऐसा बोलते हैं कि जन्मतः सब शूद्र ही है, या क्वालिटी से हमको ब्राह्मण बनना है, और ब्राह्मण से फिर हमको वैष्णव बनना है। या होप आई कुड एबल टू आंसर प्रभु। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Prabhu, throughout the class you are smiling, so this is a very good quality that I should learn from you. And the entire Bhagavatam class was in your smile, and it was the crystal clear words were used. So thank you, Prabhu. Thank you very much. Thank you. I'm so impressed by the. I mean, I'm getting inspired by your Bhagavatam class. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So, may I request Namushnu Sachimataji, if you would like to add some few points on this particular verse. So, may I request either Namushnu or Sachimataji. Hare Krishna, kindly accept my humble obeisances. Am I audible to all of you? Yes, Prabhuji. प्रभु जी थोड़ा सा स्पॉटलाइट निकालेंगे प्रभु। हरे कृष्णा, कृपाल प्रभु। Okay, bro, I'll do. This particular verse, as we see in the Bhagavatam, appearing in the second chapter, talking about divinity and divine service. Divinity means the Supreme Personality of Godhead,
And the divine service means those who render their affection towards the supreme divinity, that is, the supreme personality of Godhead. And this verse itself is speaking. I'm very, very happy to hear from His Grace Radhakrishna Rasarnava Prabhu regarding the scientific explanation about how a person should become a devotee and become very properly situated. I'm speaking English because he spoke in Hindi, so that everyone could get a proper balanced view on this. The first two lines which speaks of Evam Prasanna Manaso Bhagavad Bhakti Yogataha, and then the last two lines says Bhagavad Tattva Vignanam Mukta Sangasya Jayate. So the word Bhagavan, Bhakti and Tattva of the Bhagavad Tattva, three aspects are mentioned here. So the object of our worship, the medium of our worship, and the purpose of our worship are the three specific aspects which is mentioned. And there are two results. One result is that you become free from this material attachment called as Sangasya. And the higher joy is because of Prasanna Manaso. You become properly situated with your fullest bliss. So the two in between lines is the process, that is the Abhideya, and the first line and the last line is the Prayojana. That's how this verse is to be looked into. This is a kind of a scientific dissection of this verse that one should understand. And Srila Prabhupada placed a little greater stress here on the Brahmanical qualities. As we saw from the verse, the last line which says Mukta Sangasya Jayate is specifically addressed to those who develop the qualities of a Brahmana. And therefore, Prabhupada in the purport also said that unless one develops the quality of a Brahmana, he will not become a devotee. And that is also not the end of it. As he says, one should travel or one should transcend that and then come to the platform of a Vaishnava. In the Sanskrit, the verse what is specifying is very interesting. The first two lines and the last two lines, they have a different approach to understand. Within this verse, those instructions are embedded. That is how Sanskrit verses are always composed. By knowing the Bhagavad Tattva scientifically, Vignanam, this is a very, very significant part. What is Vijnana means? By practicing, doing the Vaidhi Bhakti, it's a Vijnana. It is not just Jnana. Like chanting, all the 9 kinds of devotional service practices what we do, and gradually come by following the process such as Adav Shraddha, Tata Bhajana Kriya, and so on. Or the Vijnana part of it means application of the Bhagavad Tattva. So that Bhagavad Tattva includes devotional service, includes the divinity, includes the divine service. All of them are included in that. That is why it is called Tattva. Tattva is like a package. And when you do this package, the first thing that you will actually get result of it is Mukta Sangha Jayate. This is the first step of result. But don't get stopped over there. You need to go further. What is that you need to go further? Yoga. Yoga means union. Bhakti Yoga. That's very clearly mentioned. So the Bhakti Yoga has to still continue. And what is the purpose of Bhakti Yoga? To remain an honest and committed servant of Bhagavan. Therefore, it is called as Bhagavat. So this Bhakti is exclusive to Bhagavan. This Bhakti is not for any other demigod, any other person, any other society members. It is exclusively for Bhagavan. Only Bhagavan can give prasannata. Therefore, those first two lines are giving evam, means it is indicating only evam prasanna. So that evam prasanna
is a proprietary right of Bhagavan. Only those who are rendering services to the Lord in that way can only get this prasannata. And for that, you have to have the attachment towards the Bhagavan through the process of Bhakti Yoga. And before that, you have to understand the science of Bhakti Yoga. Therefore, it is Bhagavat Tattva Vijnanam. Then, cleansing off all the kinds of contamination, which is Sangha. It has to be Mukta. When that happens, only Jayate means the doors will open out for actually seeking the real prasannata. That's the simplest way of summarizing this verse, according to my understanding. Thank you, Raghunandan Prabhu, for giving this opportunity. Radha Krishna Prabhu, thank you very much for doing this nice session here. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Thank you so much. Hare Prabhuji, Krishna. I also want to hear from Guru Mata, if she can say a few words. I think she's just resting a while because she had got up early in the morning. No issue. Thank you, Radha Krishna Asana Prabhu. Thank you so much. Also, let us chant for Radha Krishna Prabhu for his good health and also for his spiritual progress, along with his all family members. Let us chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, thank you all. And today there is a request from all the devotees for the seeking blessings for the devotees is Grace Dipal Prabhu on the occasion of his appearance day. And Velimu Prabhu and Preeti Mataji's their wedding anniversary, that is 2nd April. Also, they are seeking prayers. If anybody having any request, can you please tell, or otherwise we'll conclude. Anybody is there seeking prayers? I got only just 2 requests, two devotees. Prabhu, Middle East peace. Yes, Prabhu. So also we'll pray to make peace and at the current view of in the bad situation. Also we seek prayers to them, praying to God. So anything else, Prabhu? Yes, we chant Hare Krishna mantra one time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, we request all the devotees pray to Lord for the good, for the health improving of our Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami, for his good health, as well as all the disciples of Srila Prabhupada, for their good health, for their improvement. There's some devotees as having problem like Kruta Maharaj is also suffering from some health conditions. So there are many devotees of Prabhupada who is not being keeping well. For them also we will chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So again, we'll meet tomorrow evening. So today there is no prayer, as you know well, today evening. So tomorrow evening again we'll meet 8:30 for the prayers. There was one hand raised, Prabhu. Radha Raman Kupamai Prabhu, you want to say something? Radha Raman Prabhu. Oh, by mistake I couldn't do. Okay, Prabhu. Okay, thank you. So will anybody want to say something? We'll conclude for today.
If the hand raised by mistake, one has to purposefully say something. Really.